Hello, namaste, sat sri akal, assalamu alaikum. A very good evening to all. Welcome to a brand new episode of Gift to Plant, Gift to Life. I'm your host for the evening, Seema Sharif, a relationship and emotional intelligence coach, effective communication trainer, and a content writer by passion. We at Parijay Genius are here to introduce, as promised, every alternate Saturday with our guests who live up to the wonderful concept of gift to plant, gift to life, and inspire us towards a greener wealth. So, a greener environment and a holistic living is what Parijay Genius is looking forward to. Parijay Genius is committed to the cause of creating a greener environment, restoring green wealth that Mother Nature has gifted to us, which mankind has been depleting. We believe that the ecosystem is made for all creations equally, and hence its restoration is our responsibility, being the crown of creations. We need to pass on the green legacy to our generations for a better tomorrow. Our motto and belief is that every corner needs a plant. So carrying this forward, let me introduce our guest for today evening. We have Mr. Narendra Kumar Bassi. His field of service is advocacy and spreading awareness concerning life skills in HIV/AIDS since 1999. He was appreciated and authorized as community AIDS educator by UNAIDS office, Delhi in the December 2002 for his No AIDS mission. He was honored with UNAIDS Civil Society Award by UNAIDS on the 1st of December 2006. He was also honored with an award at the state level by the government of Punjab. He takes deep interest in environmental activities and promotes tree plantation. Moving on to our next guest, Ms. Paulomi Niyogi. Ms. Paulomi Niyogi is a certified life coach and an internationally certified trainer and digital entrepreneur. She runs a company, Paulomi Niyogi Consulting, which runs two verticals, digital marketing, branding, and PR. The other vertical is Guide to Goals, which is about coaching, counseling, and training. She also runs an NGO called Anvo Life Foundation that works on environment, mental well-being, education, and empowerment. So let's get on with it. Are you all excited? Well, let me begin with my first question to Basiji and then over to Paulomi. When we have occasions like festivals, functions, achievements, birthdays, we gift someone either a gift they like or a gift that we like. So how did this concept of gift to plant arise within you, sir? Narendraji, I guess we're unable to hear you. I think you need to keep your mic closer. आपको mic आपके पास में थोड़ा सा. Sorry, there's a bit of technical problem. Narendraji, we're not able to hear you. नहीं, दूर से आ रही है. I would kindly request you to rejoin the meeting. Maybe that way it would help. Nahi, we are not able to hear you. Basiji, you can rejoin the meeting and maybe then, the voice will be set. He is on mute. He is now on mute. Yeah, but even when he was unmuted, we could not hear him out. But till Basiji joins us, we could carry forward. Yes, please give it a try. No, we're still unable to hear you. Maybe you could get the headset off the system and talk, Basiji.
We're still unable to hear you. Basiji, I will come back to you. I guess till we just sort it out a bit. Palumi, would you like to take this question forward? Yeah, sure. Thank you so much. That's a very relevant question. And when it comes to gifting something, gifts always reflect our intention, what we think about the person, and also we keep in mind about the person whom we are gifting, their choice and preferences. Now, in today's urban lifestyle, or say in today's world, we literally have everything with us, whatever we need Right. to provide. So when it comes to gifting, it is I was initially very confused what to give, especially with boys, with men, what to give. That is a big question. That what should I give them? Every Right. year, the same shirts, the same things. But then a friend of mine who was staying alone in the city, so I decided to give him a snake plant. Initially, that there it was started. So what happened after that? He was extremely happy, and he said that uh, this is something. This is the best gift I have ever received because it's giving me a purpose. So I asked him Wow. in detail that what is the purpose? What is the purpose you find? He said that I every day look at it the way it is growing, and when I see it's growing, I feel that yes, I also have enough opportunity to grow. That was the day I realized, because that time he was not very happy with his current job, and he was literally complaining about his job. So many things were going on, but that one small gift, that one small plant actually gave him a direction. He started to identify the growth avenues from where he's like he can grow, he can reshape his career, he Right. can go ahead. So that is the thing, that was the first step, and after that I didn't look back. I always prefer to give plants, Right. and also I think it's very interesting that plants also reflects our personality. So we can give, like, if you say, if someone has a very charming and colorful personality, we can give them some flowers. If someone is not feeling well emotionally, we can, to make them happy, we can give small plants which will, one day they will bloom and they will produce colorful flowers. So that is going to change their mood, elevate their mood. So this is Absolutely. how there are all small things attached to it. But I believe that these are the things which, it's going to help people to connect more. So this is how it started. And I think my video is like the co-host has disabled my video, so I'm not being able to start my video. So the Okay. technical will help us with that. Yes. Arsh, would you look into it? Yeah, now it's Right. Thank you. Yes, Palumi. so I started there. It was a very small step without even thinking. And recently, you won't believe, after the last session we did, I received 3 plants as gift. And my Wow. friends watched it, and we thought that we should start from you. So I was elated. I was literally, I was so moved to see that people actually watched our discussion. They understood the power, and then they started it with me. So now Right. those 3 babies are growing, and they are like accepting all the pampering they are getting. But yes, of course, when I talk about it, you can see from the smile on my face that how happy I am because I received those as a gift. Beautiful. Beautiful. Yes, Basiji, could we have your views on this if you could unmute and get onto it? Why gifting a plant is a concept that is very dear to you? You're muted. Kindly unmute yourself. बसी जी आप म्यूट पे हो हाँ जी अभी आवाज आ रही है मेरी अब? जी बिल्कुल आ रही है बिल्कुल आ रही है धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं सुन पा रहा था मगर मेरी जी आवाज आपके पास नहीं आ रही। जी नो दैट्स अ टेक्निकल तो प्रॉब्लम इन्होंने हो बहुत जाता अच्छा है कहा बेटी ने। जी सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कही ना, भी आप मेरी स्माइल देखिए। जी जीवन में स्माइल का ही तो मोल है। सबसे बड़ी बात। और ये हंसी खुशी हमारे पास कैसे आए?
तो भी अच्छे विचार रखने होंगे, अच्छे काम करने होंगे, तभी हंसी लौटेगी ना। जी जी आज प्रकृति पूरी रुष्ट है हम पर। तो प्लांटेशन से तो मैं बड़े सन 2000 से जुड़ा हुआ हूँ, वो तो आपको मालूम ही है। जी मगर प्लांट गिफ्ट करने का काम 4 साल पहले मुझे एक मौका मिला। जी एड्स के सेमिनार में मैंने एक गमला तैयार करवाया बठिंडा से। जी लगभग 200 प्लस वो गमले तैयार किए गए, उनमें प्लांट्स लगवाए गए। जहां भी लेक्चर होता वहां वो प्रेजेंट किए। और आज भी जब मैं वहां विजिट करता हूँ, उनको देखता हूँ, तो वो अधिकारीगण या वो ऑफिसर याद रखते हैं, बसी जी आपका प्लांट बिल्कुल देख लीजिए सामने, बिल्कुल तंदुरुस्त रखा हुआ है हमने। जी बिल्कुल। तो ऐसा ही एक मैं अपने मित्र के ऑफिस में था, तो उनको एक सज्जन आए अपनी बिटिया का इनविटेशन देने। ड्राई फ्रूट भी था, स्वीट्स भी थी, मगर साथ में एक जो बॉक्स बना था लकड़ का विद हैंडल, उसमें एक तुलसी का प्लांट भी था, एक स्मॉल गमले में लगा हुआ। तो ये आइडिया वहां से चला भी हमें जो मिठाई है वो हमारा स्वाद है, ड्राई फ्रूट है हमारा टेस्ट है जीभ का, मगर ये तो पौधे हमारी आत्मा की खुराक हैं। बिल्कुल। तो ये बातचीत आगे बढ़ानी चाहिए, तब से चल रही है। तो भाई बेटी एकता ने जब ये मई 2020 में मिली लॉकडाउन के बाद, तो ये सिलसिला ज्यादा शुरू हो गया, क्योंकि गमले वगैरह चंडीगढ़ से उन्होंने भिजवाए, अब भी आए हैं। तो जिससे भी मुलाकात होती है, कोई प्रोग्राम होता है, तो कोई सेमिनार, तो उसमें वो वही पॉट प्रेजेंट करता हूं मैं। ये एक नया आइडिया है, ये हमारे जीवन में हरापन ला रहा है। जैसे जी अभी शायद दो ऑफ हो गए हैं सेमिनार, उसमें कहा गया था पीले पत्ते काट दीजिए। तो जीवन में जो माइनस बातें ना उन्हें काट दीजिए, उसको मैंने इस तरह लिया था, आज भी उसी तरह ले रहा हूं। अब बात आती है भी हम प्लांट ही क्यों गिफ्ट करें, जी तो मैंने इसे आत्मा की खुराक का नाम दिया है। तो सबसे बड़ी खुराक है हमारी आत्मा की ये। बहुत बढ़िया। हम एक पौधा, जो एक प्लांट गिफ्ट कर रहे हैं, वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, जिसको हम दे रहे हैं ना जी। जी वो टेबल पर उसने रखा है या अपने ड्राइंग रूम में रखा है, जैसे ही वो देखेगा हरापन, नयापन, अच्छा उसे एक अपॉर्चुनिटी और मिल गई, थोड़ा सा और काम दे दिया हमने, भाई इसको थोड़ा पानी भी देना है आपने, और समय समय पर इसकी जो है गुडाई भी आपने करनी है। तो एक नया काम मिल गया, तो हमने एक मार्ग खोल दिया उसके लिए भी, इस मार्ग से आप चलिए। तो मेरे कई मित्रों ने इस आइडिया को अपनाया और उन्होंने गिफ्ट के साथ साथ ये भी देना शुरू कर दिया है, गिफ्ट ए लाइफ, गिफ्ट ए प्लांट, गिफ्ट ए लाइफ, इस स्लोगन के दिन जो हम प्लांट दे रहे हैं वो हम जी जीवन ही दे रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है। जी तो ये लंबे समय तक गिफ्ट रहता है। मान लीजिए आपने एक मिठाई का बॉक्स भेजा, हमने खाया, 2-3 रोज में खत्म हो गया, मगर ये खत्म होने वाला नहीं है। अगर उसमें कोई प्लांट में समस्या भी आ गई, तो वो जिसको हमने गिफ्ट किया है वो प्लांट चेंज करवाएगा ही करवाएगा, एडिशन करेगा। वो इस विचार पर सोचेगा भी मुझे भी ये प्लांट जरूर गिफ्ट करना चाहिए, बड़े बड़े गिफ्टों के बराबर इसकी वैल्यू है। तो हर अवसर पर हम ये जो है ना जी पौधा प्लांट गिफ्ट कर सकते हैं। एनिवर्सरी है, बर्थडे है, बच्चे का बर्थडे है, हम दे सकते हैं। तो मैं तो यहाँ ये कहूंगा भी भाई जहां दूसरे गिफ्ट दे रहे हैं, चलो आप उसको नहीं रोक सकते, मत रोकिए, मगर प्लांट जरूर गिफ्ट कीजिए। इससे बच्चों में वातावरण के प्रति एक जिम्मेवारी बहुत बड़ी बढ़ जाएगी। जी तो जब हम एक प्लांट देते हैं तो उसमें एक ट्रस्ट, विश्वास भी हम साथ में देते हैं, एक आशा की किरण भी साथ में देते हैं। तो अभी लॉकडाउन में सबने जांच लिया, परख लिया कि ऑक्सीजन की क्या वैल्यू है। जानते बूझते हुए भी हम इसको भूल रहे थे, इस चैप्टर को। तो प्रकृति ने वाया कोरोना हमें याद दिला दिया भी भाई मेरा भी मोल है, मुझे भी याद रखा करो। तो प्रकृति के साथ हमें जोड़ा इस हरेपन ने। सॉरी। तो ये हाउस प्लांट जो है बहुत हेल्दी है, हम इसे रखते हैं, देखते हैं, संभालते हैं, पानी भी देते हैं, और उस परंपरा के साथ हम आगे बढ़ते हैं। एक ये नई चीज है जो परिजाई जीनस ने ये कार्य किया है ना, तो एक नई जान फूंक दिया, मैं ये समझता हूं इस सिलसिले में।
जी पता सबको है, मगर इम्प्लीमेंट करना उस चीज को, इसके लिए हम लोगों से जुड़े हैं और लोगों को इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं भी कृपया जब भी आप कोई गिफ्ट देते हैं, विद्यार्थियों को देते हैं, टीचर्स को देते हैं, कभी मत भूलिए गिफ्ट ए प्लांट, और एक जीवन ही उसको आप दे रहे हैं, क्योंकि प्लांट तो जीवित है ना, एक जी जीवन ही दे रहे हैं हम उसको। जी तो भाई आपके शहर में अगर ये प्लांट नहीं मिलते हैं तो परिजाई जीनस से आप रिक्वेस्ट कीजिए, वो आपको प्लांट जो प्लांट्स हैं वो मुहैया करवाएंगे, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। तो बिल्कुल बहुत अच्छा चल रहा है ये। एयर प्यूरिफायर पर मैं थोड़ा कहना चाहता हूँ, एयर जी प्यूरिफायर जो प्लांट्स है ना, इनकी तादाद ज्यादा होनी चाहिए हमारे घरों में। सही बात मान लीजिए कुछ फ्लैट्स हैं, बठिंडा तो एक टाउन है, इतने फ्लैट सिस्टम यहाँ नहीं है, मेट्रो सिटी में तो फ्लैट सिस्टम है, 20-20, 26-26, 30-30 मंजिलें हैं वहां पर। जी तो अक्सर हम देखते भी हैं, कोई न्यूज आती है तो इस पर आजकल बहुत लिखा जा रहा है। लिखे को पढ़कर टालिए मत, उस पर अमल करना ही बहुत जरूरी है। तो यहाँ अभी जो 500 त्रिवेणियां हम मेरे पास आई थी सृष्टि से, तो 251 251 त्रिवेणी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 105 त्रिवेणी महाराजा रंजीत सिंह, और खेती विरासत वालों ने हमें रिक्वेस्ट किया 101 त्रिवेणी वो हमसे लेकर जाएंगे। और एक बहुत अच्छी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, कल ही हमने लेह लद्दाख के लिए आईटीबीपी के जरिए, चंडीगढ़ के ऑफिस के जरिए 150 नीम, 15 त्रिवेणियां ये भी भिजवाई हैं उनको। वो जी एक कोशिश कर रहे हैं कि हम जो लेह लद्दाख की जमीन है वहां पर वृक्ष उगा सकें, जी इसकी वहां उत्पत्ति हो। उम्मीद जी है भी आने वाले समय में वहां हम कामयाब होंगे। बहुत मेहनत कर रहे हैं इंशाल्लाह वहां, क्योंकि इट इज इंशाल्लाह ए ड्राई डेजर्ट। जी थोड़ा सा समय का मुझे इशारा कर दीजिएगा मैडम सीमा शेरिफ, ध्यान जी जरूर रखिएगा ताकि मैं जी टाइम जरूर से आगे ना चला जाऊं, नहीं क्योंकि मैंने बिल्कुल एक रचना भी साझी करनी है। इशारा कर दीजिएगा, उसमें कोई फर्क नहीं जी पड़ेगा, जरूर जी बातचीत जरूर हमारी चलती रहेगी। जी जरूर तो हमारी कोशिश है बठिंडा बैठे बैठे, देखिए हम लेह लद्दाख पहुंच गए हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर तरसीम जी, तो 5494 पौधे आज सुबह तक हम दे चुके हैं, जो हमने इंशाल्लाह डीएफओ फरीदकोट से, डीएफओ फिरोजपुर से और बठिंडा डीएफओ से लिए हैं। फलदार फूलदार नीम है उसमें, अमलतास है, माशाल्लाह बॉटल ब्रश है, आंवला है, इमली है, अनेकों प्रकार के मेडिसिनल। और माशाल्लाह मैडम एकता पूछ रही थी मुझसे, तो मैंने आज ही सीईओ को फोन किया है आईटीबीपी एनडीआरएफ में, जी तो वो जो हर्बल गार्डन और उनका मेडिसिनल प्लांट बहुत अच्छा चल रहा है। अभी जी 220 प्लांट के साथ हमने शुरू किया था जी 5 जून को। जी तो ऐसे सहयोग में हमारे साथ लोग जुड़े जी और सेवा करें। बिल्कुल मैंने एक दिया है, आगे आप 2 दीजिए, जो 2 गए हैं वो भी आगे दें। जी तो इससे जो है नयापन और पृथ्वी का हरापन जी वो हमारे फेवर में रहेगा। जी तो आज के इस मौके पर मैं, क्योंकि गिफ्ट प्लांट एक पौधा आप कहते हैं उपहार दीजिए जी और अपने जीवन दे दिया, इस पर कुछ मैंने रचना लिखी है, जी वो मैं पहले साझा कर देता हूं। जी उसके बाद कोई आपके प्रश्न उत्तर होंगे तो उनका भी उत्तर देना मेरी जिम्मेवारी बनती है। जी एक पौधा उपहार का, जी लफ्जों पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। एक पौधा उपहार का, प्यार का, सत्कार का, एक नई राह खोलेगा, प्रकृति की भाषा बोलेगा, माहौल में ठंडक, दिल को सुकून देगा, रख रखाव के लिए बस कुछ पल लेगा, बहुत लिया प्रकृति से अब सीख ले देना, जंगल बुरी तरह कट रहे जरा उनकी भी सुध लेना, जी घर पर ही सब्जी उगा, घर पर ही सब्जी उगा, बाजार के जहर को घर से भगा, प्रकृति से प्यार कर, हर जीवन का सत्कार कर, पैसों की दौड़ छोड़ दे, पैसों की दौड़ छोड़ दे, जीवन का रुख मोड़ दे, हमसे आज प्रकृति बड़ी रुष्ट है, तभी तो हमारे जीवन में कष्ट ही कष्ट है। अपनी नस्लों को क्या देकर जाएंगे? अब नेक्स्ट जनरेशन की मैं बात करना चाहता हूं साझा आपसे। अपनी नस्लों को क्या देकर जाएंगे, जरा सोचो, वो हम पर कितने प्रश्न उठाएंगे। वातावरण का सवाल है, पानी की शुद्धता पर बवाल है, अब तो जाग, अब तो जाग एक पौधा लगा, अब तो जाग एक पौधा लगा, पाल पोस हरियाली बढ़ा,
तेरे जीवन में भी हरापन आएगा, तेरे जीवन में भी हरापन आएगा, तभी धरती को स्वर्ग बना पाएगा। ये पौधे, ये वृक्ष हमारे लिए आशीष हैं। ये जी, पौधे, ये वृक्ष वृक्ष। हमारे लिए आशीष हैं, प्रकृति की ओर से हमारे लिए बख्शीश हैं। एक पौधा उपहार का, प्यार का, सत्कार का। मैंने अपने विचार और अपनी रचना आपके साथ साझी की है। बहुत खूब बसी जी, बहुत खूब। ये आपने बहुत धन्यवाद, अच्छी धन्यवाद। बात की है कि आगे चलकर जो हमारी नस्ल होगी वो हम पे प्रश्न यस, उठाएंगे, यस। तो हम उनको क्या क्यों दे उठाएंगे? पाएंगे। वो क्यों जी, ना उठाएंगे? जी हमने बिल्कुल। नदियों का पानी पिया, जी नहरों का जल पिया, हमारे बिल्कुल, पेरेंट्स ने भी वही पिया, मगर बिल्कुल। आज हम उसे पी नहीं सकते हैं। जी आज वो पानी बड़ा हमने गंदा कर दिया है, इंडस्ट्री बिल्कुल। ने गंदा कर दिया, केमिकल्स ने गंदा कर दिया। ऐसे सब्जियां देखिए, अभी रोज रिपोर्ट आ जाती है कहीं ना कहीं से, सब्जी को जी फ्रेश बनाने के लिए, सब्जी जल्दी होगी, टीका, वहां भी टीकाकरण हो रहा है सब्जियों का। जी कोरोना जी से बचने के लिए हम टीका नहीं लगवा रहे, मगर सब्जी लौकी में टीका लगा रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल, घर घर जहर पहुंचा रहे हैं। दूध में भी बिल्कुल। हमारा यही हाल है। जी बिल्कुल, जी, बिल्कुल। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। और आपकी एक और बात ने मेरे दिल को छू लिया कि ये जो भी है ये हमारी आत्मा की खुराक है। ये बिल्कुल है। वाली बात, आत्मा की खुराक जो आपने बताया, कि ये बहुत दिल को छूने वाली चीज है। धन्यवाद, धन्यवाद। जी जी। अब आपको मेरा अच्छी लगी अगला बात? बिल्कुल जी। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल पौलमी से है कि Ptolemy, why is gifting plants a sign of care according to you? As what I was saying, that because I work on lot of emotional intelligence and people who are dealing with emotional issues, I have always seen that uh, life, where we are. You're on mute, Ptolemy. We are not able to hear you. Uh, Ptolemy? Yes. Yes, So yes, dear. life is something which actually helps us to, uh, motivate someone to find a purpose. Right. Because we have seen when a mother gives birth to a child, the mother suddenly finds a new purpose. Not suddenly, even if she knows the purpose about 9 months, and that is the beauty of life. So whenever we are welcoming a pet, suppose we are taking a pet, we are welcoming a pet in our house, we have Right. a lot of expectations, we have a lot of excitements related to that particular pet. So plant is similarly, it is also a sign of life, it is a sign of vitality. So Ji. whenever we give someone a plant, we are not only just giving them some a thing or a material, it is a responsibility, it is a purpose. So, a grow, as I always talk about the growth process of plant, it's beautiful to see how a plant is growing. It's fascinating, in fact. When we see that, the height is growing, the plant is growing, the leaves are turning into the green is turning into a darker green. So all these has a very like direct impact on our emotions. Suppose in a morning, in a busy morning, you just wake up and you get ready for your office. I'm just taking a hypothetical situation. You're going to Absolutely. your office, quickly finishing your breakfast, rushing to your office. And imagine a day where you wake up, you spend some time with your greens, you see them, your eyes are seeing those greens. Then you plan your entire day, then you have your breakfast, then you go to your office. So, identify these two difference in the lifestyle. So most of the time today we complain about time management, we complain about focus management, but are we giving enough effort to do that? Are we Right. listening to our emotions, that what our emotions are trying to communicate to us? So communicating, getting a plant in your house, or taking care of that plant actually gives you also a chance to hear about your emotions. When you have this thing on your mind, okay, I have to water the plant, I have to take Hmm. care of the leaves, I have to remove the all those yellow leaves, or I have to remove if there is any kind of dust on the leaves or something. So this is also a decluttering process. The mind declutter, we talk Absolutely. about detox body, like physical detox, we talk about taking this diet, we talk about taking this water, this, that, etc. But when it comes to mind, it's also very important that we detox our mind. And this, like plant, taking care of a plant, that helps us into
to understand the detox process of mind. And Right. if we talk about mindfulness, which is another powerful tool which we use for our emotional issues, to manage our emotional issues, taking care of a plant is one of the active meditation that I follow, and I also ask my coaches to follow, because we are getting, even children with developmental disability, they are also getting a very good benefit when they are taking the parents are involving them into these activities, and they are like just calming down, they're also behaving in a better way, everything, they're not no more restless, they are watching the plants to grow. So there are lots of benefits, and when it comes to like emotional benefits, it is uncountable. We actually can't count that. When we are gifting someone a plant, we are gifting them a life. So you Right. understand that how big the impact of life can be. Absolutely. Absolutely. बसी जी, बहुत सुंदर कविता थी आपकी, और धन्यवाद इसी धन्यवाद। को फिर आगे, इससे आगे जानना चाहेंगे कि कैसे एक प्लांट आपने जो गिफ्ट किया, कि जिसको आपने ये तोहफे के तौर पे दिया, उसको भी आप डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं, और इनडायरेक्टली आप वातावरण को कैसे उस तोहफे से आप, हाउ आर यू अफेक्टिंग दैट इनडायरेक्टली, हाउ आर यू अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट इनडायरेक्टली बाय गिफ्टिंग अ प्लांट? थोड़ा सा प्रश्न को हिंदी में करिए जी। आप किसी को जब ये पौधा आप तोहफे में देते हैं, एक आप उनको भी, हाँ, आप उनके लिए भी फर्क पड़ेगा और वातावरण के लिए भी फर्क पड़ेगा, तो इन दोनों चीजों को आप थोड़ा सा विस्तार में बताइए कि कैसे आप किसी को तोहफा देने से एक पौधा वातावरण में भी फर्क पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब आप एक पौधा लेकर जाएंगे ना, तो आपके विचार वैसे ही होंगे, शुद्ध होंगे जी। आपके विचार उसके साथ जुड़ेंगे, उसका नयापन, उसका हरापन, वो आप डिलीवर करके आ रहे हैं, शेयर करके आ रहे हैं, और आप एक आशा के साथ वैसे ही बात करेंगे, प्लीज हैव केयर ऑफ इट, इसका ध्यान रखिएगा, इसे बढ़ाइएगा, मल्टीपल करिएगा। तो ये जो हमारी यहाँ बटालियन है एनडीआरएफ की, यहाँ ये मुरस्थला बठिंडा, इट इज गेटवे टू ऑफ राजस्थान। बेसिकली बठिंडा का ये पुराना रास्ता इसे कहते हैं। इट इज ए गेटवे टू राजस्थान। यहाँ बस मिट्टी के टीले होते थे बस, तो वहां भी वैसी हालत थी। तो उसको ग्रीन करने के लिए 2006 से मैंने उसके साथ जो रास्ता जोड़ा, तो अभी मैडम एकता देखकर गए, पिछली बार मेरे साथ आए तो गए थे वहां पर। आज वहां प्लांट के लिए और दरख्त लगाने के लिए जगह ढूंढनी पड़ती है, उनको पहले प्लान करना पड़ता है, इतना हरा भरा हो गया है। जो मेरे शहर का टेम्परेचर है उससे 2 से 3 डिग्री वहां टेम्परेचर कम होता है। तो ये किसका प्रभाव है? हरेपन का, बिल्कुल, प्रकृति का, वनस्पति का। तो अब तो जैसे जैसे आपसे जुड़े हैं, जब से चला ये सिलसिला नया जो सृष्टि आ रही है, सृष्टि ORG, तो अब बेटी निजोगी ने पीछे भी बातचीत बहुत अच्छी की थी, और किचन गार्डन का बहुत अच्छा आया था सिस्टम, उस पर बड़ी बातचीत हुई थी। तो मैं भी इस कोशिश पर ही हूं भी, थोड़ा सा मैं भी आपसे सीख लूं, और घर पर ही सब्जियां क्यों ना उगाई जाएं। थोड़ी मेहनत है और तो कुछ नहीं, मगर एक बहुत बड़े जहर से बचेंगे। तो कविता में भी वैसा मैंने अपना भाव रखा है, शेयर किया आपसे। तो यहाँ हमारे एक रेंज ऑफिसर है, उनकी कोठी मैंने मैडम एकता को बताया था, रेंज ऑफिसर है हमारे गुरपाल जी, उनके घर में 300 से ज्यादा प्लांट हैं, सारी सब्जियां छत पर उगती हैं। एक सप्ताह के लिए पूरी की पूरी सब्जियां वहां से लेते हैं, फिर अगला सप्ताह, फिर अगला सप्ताह। तो बहुत अच्छा लगा। तो मैं भी सीख रहा हूँ कि होना चाहिए। जो एक नई बेटे की कोठी बन रही है, वहां पर इनको दिखाया है, वहां पर रूफ टेरेस गार्डन तो हमने बनाना है, और किचन गार्डनिंग भी वहां जरूर करनी है। हम अपनी सब्जी उगाएं और अपनी सब्जी खाएं। तो यहाँ पैसे की बचत से ज्यादा जो जहर वाला, पॉइजन वाला चैलेंज है ना, टीका करने वाले कद्दू, टीका करने वाली लौकी, और हैरान रह जाते हैं हम। तो यहाँ बठिंडा में अदरक को एक केमिकल से धोया गया और नया बना दिया गया। पूछा गया भी कब का, कहता जी 10 दिन पुराना था, सूख गया, बिकता नहीं था, तो अब केमिकल से धो दिया है, अब हाथों हाथ बिक जाएगा। क्यों? उसमें नई चमक आ गई।
जी तो हमारे जीवन पर ये जो लोगों का व्यापारिक लालच है ना, जी उसने हमें बहुत पीछे छोड़ दिया है। हमारे जो लाइफ है स्टेक पर आ गई है, बीमारियों का घर बन चुके हैं हम। जी तो इसके लिए बचने के लिए तो भाई सृष्टि ORG परिजाई जीनस बहुत बड़ा कार्य जो इन्होंने उठाया है, 1,00,000 का, परमात्मा ये पूरा करेगा। हम सबके सहयोग से इंशाल्लाह जरूर। लोगों को जोड़ रहे हैं। जी धन्यवाद। जरूर, बहुत शुक्रिया जी। Paulomi, my question to you is, how does a plant, gifting a plant, help us feel more emotionally connected? Okay, sir is answering in Hindi, so जी मैं भी सोच रही हूँ, मैं कोशिश करूँ, I don't know. जी बिल्कुल जी बिल्कुल इमोशनल कनेक्ट अगर हम बात करें इमोशनल कनेक्ट की, तो हमारे घर में हर एक छोटे छोटे चीजों से, अगर आप अब 10 दिन घर के बाहर रहो, 5 दिन घर के बाहर रहो, आप जी घर वापस आना चाहते हो, राइट? So that is the kind of emotional connect we have with our home, with our space, and with our जी things also. तो हम लोग ये बोलते हैं कि जो मटेरियल्स होते हैं उनसे जो इमोशनल हमारे जो कनेक्ट होते हैं, दोज आर नॉट लाइक समथिंग परमानेंट, दैट इज समथिंग कि एक नई चीज आने से वो रिप्लेस हो जाता है, फिर हम उसकी तरफ ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। जी बट हमें ये पता है कि हम लोग कहीं ना कहीं कनेक्टेड फील करते हैं। जी नाउ मैं आई अगेन कम बैक टू माई पॉइंट, जब हम लोग हमें एक गिफ्ट मिलता है, वी रिसीव गिफ्ट प्लांट्स एज अ गिफ्ट, जी that is something, again it's a life, so you spend some time with that. आपके घर में जितने सामान होते हैं, शायद आप सबके साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं करते हो जितना आप एक प्लांट होता है उसको, जितना आप अटेंशन देते हो, उतना अटेंशन शायद हम सब सामान को नहीं देते हैं। तो वो जो अटेंशन देने का प्रोसेस है, एंड इन माय लास्ट कन्वर्सेशन आई वाज मेंशनिंग अबाउट एक्टिव मेडिटेशन। जी एक्टिव मेडिटेशन मतलब क्या है कि हम लोग जो दिन भर के जो काम करते हैं, जैसे हम खाना बनाते हैं, जैसे हम लोग कपड़े ठीक करके रखते हैं, और एंड दीज ऑल दिस थिंग्स, इफ यू डू ऑल दीज थिंग्स माइंडफुली, यही हमारा एक्टिव मेडिटेशन है। हमें कहीं पे एक जगह पे बैठने की जरूरत नहीं होती, हम अपना काम करते करते उसी में उसी टाइम पे हम लोग एक मेडिटेटिव स्टेट में पहुंचते हैं, जहाँ पे हम उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्लांट इमोशनल कनेक्ट, आपके घर में अगर प्लांट्स है तो वो सिर्फ आप उसका टेक केयर कर रहे हो ऐसा नहीं है, आपके घर में बच्चे हैं वो भी देखभाल कर रहे हैं, आपके माता पिता है वो भी देखभाल करते हैं प्लांट्स के। तो फैमिली बॉन्डिंग भी क्रिएट करते हैं, और फैमिली बॉन्डिंग की जब बात आती है तो सबसे पहली बात है इमोशनल कनेक्ट। हम जी कनेक्ट होते हैं, यही है एक एक परिवार की, एक फैमिली में द बेस्ट पार्ट इज एवरी मेंबर इज इमोशनली कनेक्टेड। जी एंड जो प्लांट आपको एज अ गिफ्ट मिल रहा है, आपके पास चाहे एक प्लांट हो, आपके पास चाहे पूरा गार्डन हो, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर फैमिली, वो भी हमारे परिवार का ही हिस्सा है। जी तो वो अगर हमारे परिवार का हिस्सा है तो हमारा जी उसके साथ कनेक्ट बनना भी काफी नेचुरल है। हम देखते हैं कि राइट कैसे ग्रो कर रहा है, हम खुश होते हैं। अगर हमारे पेड़ में एक फल आए, हम फूल दिखे, तो हम लोग खुश हो जाते हैं। अगर नहीं हो रहा है, अगर वो ग्रो नहीं कर रहा है, तो हम लोग दुखी हो जाते हैं। तो जी डायरेक्टली हमारे इमोशंस के ऊपर उसका एक इफेक्ट होता है। आप जैसे मैं बोल रही थी कि अगर किसी ने हमें गिफ्ट दिया है, किसी ने हमें कुछ एक प्लांट गिफ्ट किया है, हम लोग हमेशा हमेशा हम लोग पूरे दिन में बिजी रहते हैं, जो भी काम करते हैं, लेकिन दिन में एक बार होता है कि हम उस प्लांट से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि वो हमें जी गिफ्ट में मिला है। और जो कुछ भी हमें गिफ्ट में मिलता है, हम लोग उसको हमेशा बहुत ही ऑनर करते हैं, और उस जी इंसान से भी हमारा कनेक्ट जो है वो काफी गहरा हो जाता है, क्योंकि वो उनसे हमें ये गिफ्ट मिला है। एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हम लोग भी किसी को प्लांट गिफ्ट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ इट इज लाइक अ चेन, जो किसी एक ने शुरू किया है, अब ये चेन चलता जाएगा। ये चेन जो है, यही चेन एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्डिंग है। जी और इसी को हम लोग क्योंकि देखते हैं, देखते देखते हम लोग क्या करते हैं, एक प्लांट से दूसरा प्लांट, दूसरा प्लांट से तीसरा प्लांट, और ऐसे करते करते हमारे आसपास बहुत सारे प्लांट्स हो जाते हैं। तो बिल्कुल यही सबसे खासियत है जब हम इमोशनल कनेक्ट की बात करते हैं, कि एक हमारे घर में एक पौधे का आना मतलब सिर्फ वो किसी एक इंसान से जुड़ा नहीं होता है, वो पूरे घर से जुड़े होते हैं, और उसकी देखभाल के लिए पूरे परिवार एक साथ जुड़े होते हैं। तो इसीलिए हम अपने आप में भी, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी इमोशनल कनेक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं, और वो भी बहुत स्ट्रांग होता है। एंड ऑब्वियसली विद दैट पर्टिकुलर प्लांट वी फील अ डिफरेंट काइंड ऑफ कनेक्ट। जी बिल्कुल, बहुत सही कहा तुमने पॉलमी। जहां तक मैं समझ पाई हूँ, किसी एक इंसान को आप जब तोहफा देते हैं तो वो सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं,
वो पौधा ही सबको जोड़ने में कामयाब हो जाता है, पूरे परिवार को एक साथ लाने में कामयाब हो जाता है। तो दैट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट ऑफ गिविंग अ प्लांट। तो Absolutely. जी, तो बसी जी से मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे हम लोग अपने पौधे, जो भी पौधा हम दे रहे हैं, देने वाला भी और जो उसको लेने वाला है, जो तोहफे के तौर पे, दोनों के भी उसके जज्बात उस पौधे से जुड़े होते हैं। बिल्कुल। तो जी, तो उस पर आपके क्या विचार हैं कि पौधा ही क्यों? मैंने हाँ देखिए, जी। शुरू शुरू में मैंने एक बात कही थी भी, हम गिफ्ट में मिठाई लाए, ड्राई फ्रूट लाए, वो एक जी जीभ का टेस्ट है, स्वाद है, सही। हमने खा लिया, काम खत्म। 3 दिन बाद वो डिब्बा डस्टबिन में। मगर जो पौधा है, उससे जो जुड़ाव आएगा ना, वो हाँ टूटने वाला नहीं है, कभी बिल्कुल। भी नहीं टूटने वाला। क्यों? वो एक जीवन है बेसिकली, एक नया जीवन। दो साथियों के बीच एक एक जीवन ऐसा आ गया जिसमें हमने सांझ डाल ली, हाँ जी दोनों तरफ से, देने वाला और लेने वाला, दोनों में एक नई सांझ आ गई। तो जब भी हम बैठेंगे, बात करेंगे, तो उस पौधे की बात जरूर होगी जी भी, वो पौधा ऐसे है जी। अच्छा, उसमें ये समस्या आ गई जी, अब क्या करना चाहिए मिस्टर बस्सी? तो मैं भी माली से पूछ कर फिर उनको कन्फर्म करता हूँ भी जी ऐसी बात है। देखें ना, जुड़ाव भी हुआ, बातचीत भी बढ़ी, और जी उनका टेस्ट भी हमने बदला भी। आप जी मिठाई का डब्बा, ड्राई फ्रूट का डब्बा जरूर दीजिए, मगर एक प्लांट भी गिफ्ट जरूर कीजिए। जी 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 ये बहुत बड़ी बात है, एक नया सही। जीवन देंगे परिवार में। जब एक पौधा आया, पहली बार मान लीजिए घर में आया, आपके गिफ्ट आया, तो जी क्या होगा? सबकी उत्सुकता बढ़ेगी, सब उसको देखेंगे, सब उसकी केयर करेंगे, सब आपसे पूछेंगे, अपनी अपनी जानकारी में इजाफा करेंगे, और फिर कोशिश होगी, बच्चे भी कहेंगे बर्थडे है पापा मम्मी को, भी प्लांट ही गिफ्ट करना जी मैंने अपने मित्र को, उसका बर्थडे है, तो वहां मैं जी ये लेकर जाना चाहता हूँ, ये मेरे लिए अरेंज कीजिए, ये लाइए। तो जी एक प्रकृति के साथ हम जोड़ रहे हैं, ये जो जी परिजाई जीनस या सृष्टि ORG है, जी तो हम जुड़े सब हैं, मगर अलग अलग, थोड़ा सा बिखरे हुए हैं सभी। हम उनको एक जी सूत्र में पिरो रहे हैं, ये काम जी होना चाहिए। तो अभी जो खेती विरासत वाले, वो 2.5 एकड़ लैंड में जी 101 तरवेनियां लगाना चाहते हैं, यानी कि ऑक्सीजन का भंडार ही लगाना चाहते हैं माशाल्लाह। इलाके जी के लिए। जी तो जी देखिए, विचार है ना जी उनका। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल आप जब जीवन देते हैं, तो जीवन का तो ध्यान आपको भी रखना पड़ेगा, जिसको दिया है गिफ्ट वो भी जीवन का ध्यान रखेगा, तो जीवन में बिल्कुल। एक नयापन आएगा। जी धन्यवाद। बिल्कुल। तो जब भी हम लोग पौधा तोहफे में देते हैं, तो उसके साथ जो जज्बात जुड़ते हैं, पौधा देने वाले का, पौधा लेने वाले का, जिसको आपने तोहफा दिया है, दूसरा जिसको पौधा मिला है, उसका सारा परिवार जो है उस जज्बात से जुड़ जाता है। और तीसरी बात यह है कि वो परिवार भी देने वाले के साथ भी जुड़ जाता है, बिल्कुल। वहां भी आपके जज्बात आ जाते हैं। और जिसने दिया है उसका भी, और जिसने लिया है उसका, प्रकृति के साथ भी जज्बात जुड़ जाते हैं। तो ये बहुत खूब बात बताई है आप दोनों ने, पौलमी एंड बस्सी जी दोनों ने बहुत ही बढ़िया बात की है। तो आप चलते हैं हम हमारे ऑडियंस की, और अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं, या नीतू जी, आई थिंक यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क देम योर क्वेश्चन। हेलो हेलो एवरीवन। हाय। हाँ, मैं यस, यूर चेन्नई ऑडिबल। से हूँ। हाँ, आई स्पीक इन हिंदी। ओके, जी मैं चेन्नई बिल्कुल। से हूँ एंड मेरा पोर्ट्स एंड प्लांट्स का बिजनेस है। मैं अपना एक शेयर कर रही हूँ आपसे आइडियाज। तो लास्ट ईयर मेरे हस्बैंड ने दीपावली पे मनी प्लांट्स गिफ्ट किए थे विथ पोट्स अच्छा एंड, तो जितने अराउंड 50 मनी प्लांट्स उन्होंने गिफ्ट किए थे जी एंड सारे प्लांट्स बहुत अच्छे ग्रो किए। उनके वापस रेस्पॉन्स भी आए कि, और उसके बाद में कितने ही जनों ने आए और पूछा भी हाउ टू गिव द प्लांट्स एज ए गिफ्ट, और वो उनको कुछ आइडिया नहीं था कि पोट्स कैसे चूज करना है, प्लांट्स कैसे देते हैं, कैसे। तो हमने उनको सब बताया, बिकॉज आई एम इनटू दिस बिजनेस ओनली। जी। अभी जब मेरा जो ओपिनियन एक और है कि जब भी प्लांट देना, तो हम्म। उसको हेल्दी प्लांट देना चाहिए। बिल्कुल।
क्योंकि अगर अपने उस वक्त थोड़ा सा कॉस्ट वाइज या बजट वाइज अपने कॉन्शियस रहते हैं, और यूं जैसे जी मैंने मनी प्लांट्स दिए तो मैंने बोले तो मेरे हस्बैंड ने दिए, तो उन्होंने अच्छे दिए थे, अच्छे जी दिए मतलब बुशी प्लांट दिए तो वो जी ग्रो किए। तो मेरा ये सजेशन है कि भी अपने ये आइडिया दें कि जब आप किसी को गिफ्ट दो तो अच्छा दो, ताकि वो ग्रो करे और लोग बिल्कुल इंस्पायर हो। बिल्कुल अगर वो जाएगा और 10-15 दिन में खत्म हो जाएगा प्लांट, तो वो बोलेंगे क्या तो दिया, ये क्या गिफ्ट है, इसे क्यों देते हैं, तो वो एक नेगेटिव ओपिनियन आता है उससे। तो जी एक तो अपने को ये प्रमोट देना करना चाहिए कि, और उसके बाद में जब अपने देते हैं तो उसके साथ में उसको गाइडलाइंस भी देना चाहिए कि हाउ टू टेक केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लांट। कुछ जी शेड लविंग होते हैं, कुछ सनलाइट लविंग, कुछ लेस वाटर मोर वाटर, जो भी है। तो ये सब चीजें अगर अपने एड ऑन करके देते हैं तो इट विल एनहेंस द वैल्यू ऑफ द गिफ्ट। जी एंड बस ये सजेशन है सर। और जैसे बस्सी जी ने बताया था कि अभी वो इतने प्लांट्स दे चुके हैं, या अपने देश में इतने प्लांटेशन का काम चलता है, लाखों के अमाउंट में प्लांट्स लगाए जाते हैं, जी लेकिन उनकी वापिस आफ्टर केयर होती है कि नहीं जी होती है, इस एस्पेक्ट पे भी ध्यान देने की जरूरत है। क्यों, मैं खुद इतने देखती हूँ कि प्लांटेशन वर्क इज गोइंग ऑन, आफ्टर 2 months व्हेन आई कम बैक टू सी देम, तो वहां पे कुछ नहीं है, दे आर जस्ट नथिंग इज देयर। सो ये जी सब चीजें हैं। तो एज ए लाइक responsible citizen we should work in this way। जी धन्यवाद नीतू बहुत जी। आपने बहुत ही अहम बातें रखी हैं सामने। एक ये कि जब भी आप किसी को उपहार दो तो फलता फूलता पौधा दो। दूसरी बात यह है कि उसकी सारी जानकारी भी दो कि उसको किस तरीके से उसकी देखभाल की जाए। एंड तीसरी बात यह है कि अगर कोई प्लांटेशन हो तो उसके बाद भी हम जिम्मेदारी से उस पौधे को ना उसका आगे जीव कैसे जा रहा है उस पर भी हम लोग ध्यान दें। तो जरूर परिजय जीनस की तौर से हम लोग भी यही पूरी तरह से आपसे सहमत भी हैं और यही विचार रखते हैं और इसी को ही हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। तो यू आर फ्री टू जॉइन अस इन दिस मिशन। वी हैव अ मिशन ऑफ त्रिवेणी, जहां पर हम 1 लाख पौधे लगाना चाह रहे हैं त्रिवेणी। जहां पर भी हम लोग वेर एवर इट इज फीजिबल देन हम लोग वहां पर त्रिवेणी लगाना चाह रहे हैं। आप भी लगा सकते हैं ऑन आवर बिहाफ, या यू कैन रीच आउट टू अस इफ यू फाइंड अ प्लेस एंड यू वांट समवन टू कम एंड डू द प्लांटेशन, देन मोस्ट वेलकम। we'll share our links in the chat box, तो आप उसके जरिए से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। And it's wonderful having you on our show and share your thoughts with us, Neetu ji. Thank you so much. I'm also glad to be a part of this meeting। Super. So please, आगे भी हम लोगों के बहुत से programs है। Every Saturday we have a program as well. Okay। And and alternative Thursdays we have for Gift to Plant and Gift to Life. तो हमारे साथ जुड़े रहिए। And you can tell your friends, you can tell your family members, जो भी हैं आपके relatives, and spread the word around कि जितने हम लोगों के साथ लोग जुड़ेंगे उतना ही अच्छा रहेगा ना हम लोगों के लिए। yes, आगे खास करके हमारी अगली पीढ़ी के लिए, उन लोगों के लिए। yes, जी, थैंक यू नीतू जी। thank you। Anyone else in the audience would like to ask any questions बसी जी के लिए या पॉलोमी के लिए, या कोई भी आपका सवाल हो परिजय जीनस के लिए, प्लीज यू कैन put it in the chat box or unmute yourself and ask. I think we are done for the day with the question answers. So this was wonderful. बसी जी, हमेशा की तरह आप जान लगा देते हो, हमेशा की तरह। आपकी जो कविता है ना वो बिल्कुल दिल पे तीर की तरह से लगी थी। बहुत बढ़िया थी आपकी जो कविता थी। जी, ऐसे ही आप लगे रहिए, हमेशा कोई ना कोई कविता सुनाते रहिए जो बिल्कुल पूरी तौर से जस्टिफाई करता है, मायने रखता है इस पे। And Paulomi, thank you so much, dear. Thank you so much for your inputs and your mindfulness का जितनी भी आपने बात की थी हमसे। I That just was want to so say wonderful. one thing, जी, जो नीतू जी ने उसको Yes. मायने मैं एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगी कि जी, अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग चाहे गिफ्ट कर पाए ना पाए कुछ भी हो, लेकिन अवेयर होना बहुत जरूरी है कि आप अवेयर हो, उसके जो बेनिफिट्स है उससे आप अवेयर हो। और जी, अवेयरनेस तभी होगी जब हम इसके बारे में बात करेंगे, जब हम इसके बेनिफिट्स को एक्चुअली हम लोग दिखाएंगे कि हाँ ये बेनिफिट्स हो रहे हैं। तो जी, इसके लिए जो हमारे सारे जो जनरेशन्स है उनको इकट्ठे ये करना, एक साथ करना है
we have to have a very, you know, a clear collective vision which will be aligned कि हाँ हम इसको सिर्फ गिफ्ट अ प्लांट, यू नो, आप प्लांट को अडॉप्ट कर सकते हो, आप प्लांट्स परचेज कर सकते हो, आप कहीं से भी, मैं मोस्टली मैंने एक रास्ते से ऐसे उठा के लाके मैंने उसको गमले में डाल दिया था, नाउ दैट प्लांट इज ग्रोइंग फाइन. सो अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपके आसपास के लोगों को अवेयर कीजिए कि हाँ कैसे वो लोग, क्योंकि ये अगर प्लांट मतलब सिर्फ एक पौधे लगाना, उसको देखना, उसके फल पाना, उसको इफ द प्लांट इज ब्लूमिंग उसके फूल देखना, ये नहीं है. वाटर प्रिजर्वेंस के जो वाटर कंजर्वेशन की जो प्रोसेस है, इतने जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, सो देयर आर बिगर इश्यूज रिलेटेड टू इट. दैट इज व्हाई वी ऑल द पारिजाई टीम इज आल्सो डूइंग दैट. सृष्टि और I think I should salute Ekta for taking up such effort, like you know कि पूरे देश में, ताकि सिर्फ देश में, पूरे वर्ल्ड में इस बात को फैलाना कि every corner needs a plant. So ये अवेयरनेस लेवल हम सबको, जितना हम ज्यादा इसके बारे में बात करेंगे सोशल मीडिया के थ्रू या फिर कैंपेन्स के थ्रू, हम लोग जितना बोलेंगे कि पेड़ लगाए, कैसे आप किसी को जीवन दान कर सकते हैं. अगर यू नो हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप की बात करते हैं, हम लोग ऑर्गन डोनेशन की बात करते हैं, बट ये बहुत छोटी सी चीज है. आप एक पेड़ लगा सकते हो, आज पेड़ लगाओगे, 20 साल बाद जाके वो किसी ना किसी को जरूर मदद करेगा. तो ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि हम इस अवेयरनेस को ग्रो करें कि एवरी कॉर्नर नीड्स अ प्लांट. ये एकदम हमारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि हाँ, whenever you see a corner which is empty, take an initiative to fill it up with a plant. That is the small, it's a very small gesture, but if we can try this collectively, हम सब मिलकर अगर try करेंगे तो ये जरूर हम लोग possible कर पाएंगे. Absolutely, absolutely. I would just like to reiterate on that, like gift a plant, gift a life is there. It's a beautiful concept that promotes love, care, promotes the green wealth as well. So every corner needs a plant. So why not gift plants to surround ourselves with that love, you know, in all the corners of our house, our offices, and wherever we are. So I think this concept has to be embedded in our system and into the system of our next generation. Ki every corner needs a plant, because that promotes love, that promotes health, mental well-being, and उसमें इतनी सारी खूबियां हैं कि हम सबको जोड़ के रखता है with nature, and that is where we need to be. We need to be as grounded as possible. So, Neetu ji and Lavi, we also have a session coming up on Saturday. You're all welcome to also be a part of it as speakers, sharing your passion for plants. So stay tuned with our newer episodes, which will come up in our Facebook and Instagram. So please do join us as speakers as well, sharing your passion for the plants. So we have one more session that's coming up on Saturday. So please welcome to be a part of it as well. And you can also take part in future with us. So thank you so much. Dhanyavad Basi ji. बहुत धन्यवाद आपका. Thank you so much, Paulomi. Thank you, Ekta, for giving us all a platform to get together and promoting this Triveni mission as well, which is very dear to all our hearts. So thank you all. Good evening and have a wonderful evening, all of you. Thank you so much. Thank you. Thank you.